So here sin theta is equal to cos theta minus 45 है. ओके, sin theta is equal to cos theta minus 45 है. Therefore sin theta की जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos 90 minus theta cos theta minus 45. तो दोनों साइड cos cos कैंसिल हो जाएंगे. sin theta की जगह पे लिख सकते हैं ना cos 90 minus theta, that is equal to sin theta. तो 90 minus theta that is equal to क्या? theta minus 45. फिर थीटा इस साइड चला जाएगा, 45 यहाँ, 90 प्लस 45 थीटा प्लस थीटा. 2 थीटा इज इक्वल टू 135. थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 135/2, अदरवाइज 67.5, 67 and half. Okay, that is final answer. Question number 16. Sec, if sec 5a is equal to cosec a plus 36, a and a plus 36 are acute angle. Find angle a. तो sec 5 minus sec 5a is equal to क्या लिख सकते हैं? Cosec 90 minus 5a. We know that the formula cosec 90 minus theta is equal to sec theta. Okay, so cosec 5a that is equal to cosec 90 minus 5a, that is equal to cosec a plus 36. Okay, both side cosec cosec cancel. Therefore 90 minus 5a is equal to a plus 36. 36 transposing right side to left side, that is equal to 5a plus a. Therefore 6a is equal to 54. Therefore a is equal to क्या होगा? Angle 9. A is equal to angle 9. Okay. चलो, how to solve? Sum of all angles of a triangle is 180. Therefore angle A plus B plus C is equal to 180. That is an angle. हमें क्या लाना है? A plus B इस लेफ्ट साइड रखना है, C को राइट साइड ले जाना है. ओके, राइट साइड C है, तो A plus B एज इट इज रहेगा. 180 माइनस एंगल C हो जाएगा. ओके, अब क्या है? A plus B के डिवाइड में 2 है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2. Separate the terms, 180/2 minus C/2. ओके, अब कौन सा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया? 10. 10 A plus B/2 इज इक्वल टू 10. 180/2 क्या हो जाएगा? 90. C/2 का C/2. ओके, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा? 10 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू cot थीटा. तो 10 a प्लस b/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot c/2. हेंस प्रूफ. ओके, सिमिलरली सेम टू सेम, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180. यहाँ पे a प्लस c रखना है, तो b कहाँ जाएगा? राइट साइड. 180 माइनस b, a प्लस c/2 एज इट इज 180 माइनस b/2. अब कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना? cos. Therefore cos a plus c/2 cos 180/2 90 minus b/2 and cos 90 minus theta, that is equal to sin theta. Therefore cos a plus c/2 that is equal to sin b/2. Okay. Evaluate tan 60 cosec square 45 plus sec square 60 plus into tan 45. चलो, what is the value of tan 60? tan 60 value is √3. डायरेक्ट टेबल में वैल्यू आती है. cosec 45 वैल्यू square root 2 होल स्क्वायर.
sec 60 value is 2 whole square and tan 45 value is 1. So root 2 square is 2, root 3 multiply 2, 2 square is 4 into 1, that is equal to 2 root 3 plus 4. Therefore final 2 common, 2 plus root 3, that is final answer. Otherwise 4 plus 2 root 3 ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, क्लियर. चलो नेक्स्ट वन, 19 नंबर. 3 cos square 30 plus x square 30 plus 2 cos 0 plus 3 sin 90 minus 10 square 60. Cos square 30 value root 3 divided by 2 whole square. Sec square 30 value 2 by root 3 reciprocal of cos 30 whole square. Cos 0 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू भी 1 और tan 60 वैल्यू रूट 3 होल स्क्वायर. क्लियर. तो 3 का 3 रूट 3 स्क्वायर 3, 2 2 सा 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, रूट 3 स्क्वायर इज 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, रूट 3 स्क्वायर इज 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल. Therefore 3 3 is 9 by 4 plus 4 by 3 plus 2. Then we take LCM. 4 3 are 12. 12 is the LCM. So 9 3 are 27. 4 है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 9 जा 27. 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और 12 2 जा 24. 24 plus 16 40. 40 plus 27 67 by 12. 5 integers 7 upon 12. Okay, that is final answer. चलो 1 plus tan square. First we write a left hand side. 1 plus sin theta और 1 minus sin theta आ गया. What is the value of 1 plus tan square? How to solve? Here theta is measure an acute angle. थीटा यहाँ पे क्या है? एक्यूट एंगल है और एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है. फाइंड द वैल्यू. बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वैल्यू है हमारे पास. ए कॉस थीटा तो साइन थीटा एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा डिवाइड में चला जाएगा. दैट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी. तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? ए बाई बी. ओके, और हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? देयरफॉर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा. इन दोनों को मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करूंगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा की फॉर्मूला बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज तो कैंसिल हो जाएगा. तो साइन की वैल्यू हम क्या समझ लेंगे? ऑटोमेटिकली ए. और कॉस की वैल्यू क्या समझ लेंगे? कॉस थीटा की वैल्यू बी. साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए, कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू बी. तो साइन थीटा की वैल्यू ए रख दो. ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. Okay, and then
That is the final answer. Option number B is true. Option B is true. Okay, that is the final answer. Here, which of the following is correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर सम थीटा? और थीटा की कंडीशन क्या है? 0 इन्वॉल्व है, 90 अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेस देन 90 है, तो 90 अंदर इन्वॉल्व नहीं है. और इज द वैल्यू ऑफ 1 अपन सेक थीटा. सेक थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? नॉट पॉसिबल. कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1. तो ये तो ग्रेटर देन 1 है, इसमें 1 तो इन्वॉल्व नहीं होगा. दैट वैल्यू इज फॉल्स. ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स है. 1 अपन सेक थीटा मींस कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है? यस. कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1. ये स्टेटमेंट ट्रू है. सेक थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? सेक थीटा इज ऑलवेज मोर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 और मोर देन 1, तो ये भी फॉल्स है. ओके. और 1 अपन कॉस थीटा मींस होगा सेक थीटा. सेक थीटा लेस देन 1 पॉसिबल ही नहीं है, 1 और मोर देन 1 है. तो विच ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू. tan theta is equal to 1 by root 5. Then find the value of cosec square theta minus sec square theta. Cosec square theta plus sec square theta is equal to what? Here tan theta is equal to 1 by root 5. What is the value of tan square theta? Tan square theta की वैल्यू 1 by 5. Squaring on both the side. Okay? इसका स्क्वायर कर दो, tan square theta 1 by root 5 का स्क्वायर 1 by 5. तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? cot. cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी. हमें क्या लेना, फाइंड करना है cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा डिवाइड cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा. तो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? cot और cot में cosec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर, और माइनस है तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सिमिलरली 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, प्लस है तो +1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cot स्क्वायर, माइनस sec स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस tan स्क्वायर. cosec स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस cot स्क्वायर और sec स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर. +1 -1 कैंसल. क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हमारे पास cot और tan थीटा की दोनों की वैल्यू है, इसीलिए cosec और sec को हमने cot और tan में कन्वर्ट कर दिया. cot स्क्वायर थीटा मींस 5. cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 5, नॉट 5 स्क्वायर, ओनली 5. माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 by 5 और 1 + 1 2. cot स्क्वायर थीटा 1 + 1 2. cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 by 5. सिंप्लीफाई दिस टर्म, टेक एलसीएम. 5 5 जा 25 माइनस 1 by 5, 25 माइनस 1 डिवाइड बाय 5. 5 + 2 7, 7 5 जा 35. पहले इन दोनों का एडिशन 7, 7 5 जा 35 प्लस 1 by 5. बोथ डिनोमिनेटर कैंसल. न्यूमरेटर 24 डिवाइड बाय 36, 12 2 जा 12 3 जा 12 12 कट 2 by 3. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, दैट इज इक्वल टू 2 by 3. देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 8 by 7. हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा दैट इज cot स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8 by 7,
तो रेसिप्रोकल इसका tan का रेसिप्रोकल cot, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/8 और विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू। ओके, हियर cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, cot theta is equal to 4/3, so cot theta means cos theta divided by sin theta, that is equal to 4/3। तो cos की वैल्यू क्या समझेंगे 4, sin की वैल्यू क्या समझेंगे 3, therefore cos theta minus sin theta, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है हाइपोटेन्यूस, वो कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू 4, sin थीटा की वैल्यू 3, 4 minus 3, 4 plus 3, 1 divided by 7, which option is true, option B is true। okay, चलो क्वेश्चन इज cosec A is equal to 4/3 and A plus B is in 90 here, and find the value of sec B। cosec A is equal to 4/3, what is the value of A plus B, if A plus B is equal to 90, therefore A is equal to क्या लिख सकते हैं 90 minus B लिख सकते हैं, तो एक ही जगह पे क्या रख सकते हैं 90 minus B, एंड cosec 90 minus B, cosec का किस में कन्वर्ट हो जाएगा sec, cosec 90 minus theta, that is equal to sec theta, and sec B is value 4/3 और हमें sec B की ही वैल्यू फाइंड करनी है। विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन सी इज ट्रू। If theta is measure of an acute angle and √3 sin theta is equal to cos theta, then theta is equal to what, देखो √3 sin theta is equal to cos theta है। ओके, तो ए sin theta में कहा लिख दूंगा नीचे की साइड, therefore √3 is equal to क्या हो जाएगा cos theta by sin theta, cos theta by sin theta, that is equal to cot theta, that is equal to cot theta। cot में कब वैल्यू √3 होती है, cot theta is equal to √3, cot में कब वैल्यू cot 30 की वैल्यू √3, तो थीटा क्या आ गया, therefore cot cancel, theta is equal to 30 degree and option A is true। okay, option A is true। here tan A is equal to 5/12, tan A is equal to 5/12, then the value of sin A plus cos A into sec A is equal to what, देखो tan A की वैल्यू हमारे पास है 5/12 एज इट इज रखो, और what is the value, to find the value sin A plus cos A into sec A, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर दो, sec A मल्टीप्लाई sin A, और sin A इंटू sec A प्लस cos A इंटू sec A, ऐसा हो जाएगा। चलो sin A का sin A एज इट इज, sec A मीन्स 1/cos A, sec is the reciprocal of cos into 1/cos, and cos and sec both are reciprocal of each other, that is equal to 1, cos A into, क्योंकि sec A की वैल्यू क्या है 1/cos A, 1/cos A, cos A कट 1 हो जाएगा। sin A into 1, sin A डिवाइड बाय cos A, वैल्यू क्या हो जाएगी tan A प्लस 1, और tan A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 5/12 प्लस 1, 12 1 जा 12, 5 प्लस 12 डिवाइड बाय 12, that is 17/12, ऑप्शन सी इज ट्रू। ओके, चलो नेक्स्ट वन 9 नंबर, tan theta is equal to 4/3, then the value of 1 square root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख के नहीं कर सकते डायरेक्ट कि 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 4 और साइन थीटा, ए साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू नहीं रख सकते,
क्योंकि अकेला साइन चाहिए, साइन की वैल्यू क्या होगी, ये ट्रिपलेट से फाइंड करेंगे। चलो, ये थीटा एंगल है ए बी सी, दैट एंगल इज थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर 4, बेस 3, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5 आ गया, हाइपोटेनियस 5 आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनियस 5, तो 4/5। अब 4/5 वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, therefore square root 1 minus sin theta divide 1 plus sin theta, that is equal to 1 minus 4/5, 1 plus 4/5. We take LCM, 5 ones are 5, minus 4 divided by 5, 5 ones are 5, plus 4 divided by 5, both denominator same, cancel out. 5 minus 4, that is 1, 5 plus 4, 9, 1/9, 1 का square root 1, square root of 9, that is 3. And which option is true? Option A is true. Option A is true. Okay. चलो, see here. In triangle ABC, angle B is equal ABC, angle B is equal to 90. In triangle ABC, एंगल बी क्या है, एंगल ए बी सी 90, तो ए बी सी 90, तो बी एंगल 90 हो गया। ए सी बी 45, ए सी बी 45, तो कोई भी एक एंगल 45 होगा तो अनदर एंगल इज ऑल्सो 45 ही होगा, बिकॉज ए 90 है तो ये दोनों का सम 90 हो सकता है। ए 45, तो ए बी क्या होगा 45। दैट इज एन, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन टू इट्स ऑपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, that is an isosceles right angle triangle. AC is equal to 6 है, तो what is the area of triangle ABC? तो फर्स्ट हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोथ साइड इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x square is 36 by 2, therefore x square is equal to 18, x square की वैल्यू 18 आ गई। therefore area of triangle ABC, area of right angle triangle ABC फॉर्मूला क्या है, 1/2 into base into height। बेस क्या है, बेस भी x है और हाइट भी x है, तो 1/2 x into x, that is x square by 2, और x square की वैल्यू क्या है 18, 18 by 2, आंसर क्या आएगा 9। ऑप्शन सी इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन 11 नंबर, cos स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू x इंटू cos 45 sin 45। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। cos स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30, x इंटू cos 45 sin 45। चलो, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x इंटू 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, 1/√2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/4 x इंटू 1√2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ओके, चलो, तो 1/2 में से 3/4 जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू x/2, और इन ये दोनों नंबर का हम डिवीजन कर सकते हैं, 2 कट 2 2 जा 4, दोनों के डिनोमिनेटर का, क्योंकि 2 यहां जाएगा तो 2 2 जा 4 हो सकता है ना, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू x, therefore x is equal to -1/2, which option is true? Option C is true in question number 9 and 10, 10 and 11 both, option C is true।
Sir, sir.